Okay? But now indirect tax are imposed on goods and services. And second point, immediate liability to pay indirect tax lies on the manufacturer, service provider, seller, and etc. But the burden is ultimately transferred to the consumer. Okay? Any doubt? You know difference between the direct tax and indirect tax. It's a different type of feature of indirect tax. Your topic is related to indirect tax such as GST. It's a different type of features. Please write down the point. Is the first taxable event and second impact and third regressive taxation. Next promote welfare and last major source of revenue. Hello, hello. Huh. I hope you have write down the points related to feature of the indirect tax. Is a facts. First, taxable event. Second, impact of indirect tax. Third, regressive taxation. And fourth, promote welfare. And last, major source of revenue. रिकॉर्ड नहीं कर रहे? नहीं तो रिकॉर्डिंग कर तो रहे हम भी, नहीं हो रही? अरे मेरा असिस्टेंट किधर चला गया? राम जी, बेट बहू, हाँ? राम जी बता रहे हैं रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अमा हो रही है, मेरी रिकॉर्डिंग ऐसी होती तुम लोग नहीं पता चलेगा। हेलो, हाँ, तुम्हारा उस्ताद जानते हो। हेलो, काम हो रहा है, तुम टेंशन न लो। कंसंट्रेट करो, फोकस करो पढ़ाई पे। क्या समझे? आई होप राइट डाउन द पॉइंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टैक्सेबल इवेंट, इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, रेजिस्ट्रेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, promote welfare and major source of revenue. The different type of features is related to indirect tax. अब इसमें से एनी कोई पॉइंट अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो बताएं, एक्सप्लेन कर दें। बताएं भाई। Anybody doubt related to any point is related to feature of indirect tax? No. हेलो, यार थोड़ा सा बोलते रहा करो तो लगता है कि सुन रहे हो। हाँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते रहा करो भाई। ऐसा लगता है हवा में बातें कर रहे हैं, कुछ कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इससे पहले जो इस पेपर का नाम था वैल्यू एडेड टैक्स वाला कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा था, जो 2005 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो सच टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इज अ मल्टी पॉइंट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन ऑन सेल ऑफ गुड्स, और under this system such as mechanism is provide to the grant credit for tax paid on input. Any under VAT, the tax is collected in stage and transactions involving sale of goods, or the input tax is
rebated against output tax. That means VAT is equal to tax collected on sale minus tax paid on purchase. Such type of following manner of VAT. You know, I hope already you knowing about this concept. VAT का जो concept था क्या था? VAT is equal to tax collected on sale minus tax paid on purchase. फिर इसमें एक वर्ड आया था बेटे, व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, याद है? एक वर्ड था इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट. तो व्हाट डू मीन बाय कैस्केडिंग इफेक्ट, या व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? तो कैस्केडिंग इफेक्ट implies charging tax on tax. यानी at the time of levy of tax, the total value is considered, which is inclusive of all taxes paid to that point. Under this manner, in this manner, if the tax is always charged on the selling price of the product, but the burden of tax keep on increasing at each point of sale. That means in this process, the effect of taxation magnifies as at each label tax is calculated on the value. Okay, तो वैट हैज एलिमिनेटेड कैस्केडिंग इफेक्ट. वैट ने क्या किया? कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया. हेलो हेलो. हाँ, तो वैट हैज एलिमिनेटेड कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी वैट हैज बीन डेवलप्ड टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस. है ना? तो यानी द कैस्केडिंग इफेक्ट हैज बीन prevented through tax credit system called as input tax credit. You know input tax credit? If any registered dealer is purchasing goods within a particular state and has paid value added tax, and subsequently the goods were sold in the same state, so in that case, such registered dealer shall be allowed to take credit for input tax. In other words, the tax is imposed at each stage on the entire sale value, and the tax paid at the earlier stage is allowed to set off. And this credit availability is called as input tax credit. Any doubt? Hello, I hope clear this concept. Any input tax credit. If any registered dealer is purchasing goods within a particular state and has paid value added tax, and subsequently the goods were sold in the same state, so in that case, such registered dealer shall be allowed to take credit for input tax. And variant of VAT: gross product variant, income variant, and consumption variant is a different tiny various possibilities of the credit for VAT paid on purchases called is variant of VAT. The VAT has three variants: gross, income, and consumption. And a different type of method is used: addition method, invoice method, and subtraction method. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है
कि ये जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है कैसे क्रिएट हुआ। इसको जानने के लिए मेजर डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स यानी प्रायर टू जीएसटी, ये बहुत जानना जरूरी कि किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हो रही, तो कोई ना कोई ड्रॉबैक है ना, कोई ना कोई लिमिटेशन किसी न किसी चीज को, नई चीज को डेवलप करती है। तो द फॉलोइंग और द मेजर ड्रॉबैक in the structure of the indirect tax prior to GST is a first, multiplicity of indirect taxes; second, non-availability of cross utilization of tax; and next, abstracted movement of goods; and last, multiple repetitive compliance। ये चार प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं जिनकी वजह से जीएसटी को क्रिएट किया गया, जीएसटी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया। is a four-factor drawback such as multiplicity of indirect taxes, and second, not availability of the cross utilization of taxes, and third, obstructed movement of the goods, and last, multiple repetitive compliance। हेलो, तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था बेटे, जो थोड़ा सा वैट को इन्फॉर्म करना, जो जीएसटी से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था टैक्स का बेटे, और उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स कॉन्सेप्ट था। अब नाउ वी स्टार्ट द जीएसटी such as introduction, any different what type of topic involved such as introduction of the GST, please write down, is the first concept of GST, is the first statement, write down concept of GST, and second topic, structure of GST, structure is the first concept, second structure of GST, next GST Council, GST network, हेलो, हाँ, तो नाउ वी स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ द जीएसटी, यानी द गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमन कंजम्पशन, and it is a comprehensive tax structure under the GST, in which the indirect tax is levied not only on supply of the goods but also supply of services. Is a different type of features is related to GST is the first applicability, नहीं applicability होगा, applicable करने का जो concept है इसका वो बहुत easy है, और कहाँ कहाँ applicable ये होगा, यानी GST extend to whole of India including the state of Jammu and Kashmir, and second, dual GST. GST in India has been imposed by the central and state. And third is very important point, destination based tax. It's a very important factor of the GST, such as feature destination based tax. And GST is a destination based tax applicable on all transactions involving supply of goods and services. And the tax is payable in the state
where goods or services are finally consumed. Okay. हेलो, हेलो, बात समझ में आ रही बेटे? जीएसटी, जीएसटी जो कॉन्सेप्ट है, कौन मोना यार, इसमें कहाँ चला गया? ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया? अरे राम जी, कहाँ से होगा ज्वाइन भाई? कहाँ गया यार? इसमें ज्वाइन करना है किसी को, देखो कहाँ से होगा ज्वाइन। हो रहा है, वो कह रही वेट कर रहा है। हो गया बेटे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो वो बेटा एक्चुअली जो गेस्ट फैकल्टी है ना बेटे, तो उनके लिए मतलब उनको पेमेंट नहीं होगा ना उस पीरियड का। तो चारू मैम ने आई होप शायद, या जो ऑर्डर आया उसके अकॉर्डिंग मैम ने मना किया है। लेकिन रंगा सर तो क्लास ले रहे हैं आज। अभी अभी नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो गेस्ट फैकल्टी जितने हैं ना बेटे, वो कोई क्लास नहीं लेगा अब। 15 तारीख तक कोई नहीं लेगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे हम लोगों को लेने में कोई दिक्कत है। अगर आप लोग ना लेना चाहें तो अलग बात है फिर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसा नया टॉपिक है बेटे, पढ़ा हुआ है नहीं बिल्कुल। थोड़ा सा पढ़ लोगे तो लिखने में आसानी रहेगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बेटे कंसेप्ट ऑफ जीएसटी की। तो उसमें बताया गया कि टैक्स यानी जीएसटी का मतलब होता है कि एक टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ दोनों पर इम्प्लीमेंट होता है। एक्सेप्ट उन्होंने किया क्या? ओनली सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर यानी ह्यूमन कंजम्पशन, उसको छोड़ करके बाकी सब पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, हेलो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इसके फीचर्स पर डिपेंड करेगा कि यानी इसका फीचर्स जो है वो डिफाइन करेंगे कंसेप्ट को। तो पहला फीचर था एप्लीकेबिलिटी, यानी कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। तो बताया गया कि यानी जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ यानी जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड, डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट यानी स्टेट और सेंट्रल, यानी यानी दिस टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल। ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बेटे कि दिस टैक्स इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी फाइनल जो कंजम्पशन जहां होगा इसका, फाइनली कहाँ जहां कंज्यूम्ड होगा गुड्स और सर्विसेज, देन यू हैव टैक्सेस पेबल। ओके, हेलो। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पहला एप्लीकेबल, दूसरा ड्यूअल जीएसटी, तीसरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हाँ, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैंने जो स्टडी मटेरियल आपको दिया है ना बेटे, उसमें उसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। खाली बस एक पेंसिल लेके बैठिए, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और अंडरलाइन करते चलिए क्या क्या पढ़ना है। उसमें बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन जो आपका, जो आपसे कोर्स से आपके रिलेटेड है, जो आपको दिमाग में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है बेटे आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, यानी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज आर subject to integrated goods and services tax IGST, यानी called as integrated tax, and it is imposed by central or all interstate supply, or the rate of IGST is
approximately the sum total of CGST and SGST oblique UTGST. एंड लास्ट फीचर है CGST and SGST oblique UTGST on intra-state supply. You know difference between interstate and intra-state बेटे? बताइए. हेलो. बताइए क्या होता है? वेरी गुड. इंट्रा का मतलब स्टेट के अंदर. हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शिव ऑफ दिल्ली सप्लाइड गुड्स टू मिस्टर विनोद ऑफ दिल्ली, तो ये क्या कहलाएगा? क्यों भाई? मिस्टर शिव ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स टू मिस्टर विनोद ऑफ दिल्ली. इंट्रा स्टेट, करेक्ट. और जैसे रमन ऑफ कश्मीर प्रोवाइडेड सर्विसेज टू श्याम ऑफ पुणे, ये इंटर स्टेट हो जाएगा. अब यहाँ पर मेन चीज है कि वो एक जो टैक्सेशन जो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ द टैक्सेशन कॉन्सेप्ट वाला, कि जैसे टाइप ऑफ जीएसटी टू बी डिवाइड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, है ना. पेज नंबर देखो 2.4 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2.1 दिया हुआ है. दिया हुआ है अभी, जिसके हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया आपसे. मिस्टर शिव ऑफ दिल्ली सप्लाइड, रमन ऑफ कश्मीर प्रोवाइडेड, लिखा हुआ है उसमें. देखिए नीचे उसका सोल्यूशन गिवन है. द टाइप ऑफ जीएसटी टू बी लिवाइड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई, मतलब नेचर ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करेगा टैक्स का कॉन्सेप्ट. और इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड लिवाइड वेरीज. इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ओनली आईजीएसटी इज एप्लीकेबल, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई केवल कहाँ, आईजीएसटी ओनली इज एप्लीकेबल. तो उसमें देखिए सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आपका क्या है बेटे? सेकंड और फोर्थ आपका इंटर स्टेट है. पंकज सप्लाई गुड्स फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस चंडीगढ़ और टू सुरेंद्र ऑफ देहरादून यूपी. दो इंटर स्टेट हो गए, दो स्टेट अलग अलग. तो यहाँ पर केवल क्या इंप्लीमेंट होगा? टैक्स, आईजीएसटी. क्या लगेगा? हाँ. और जो इंट्रा स्टेट होगा बेटे उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी इंप्लीमेंट होगा. हाँ, थर्ड वाला वो जानकी ऑफ गोवा, उसमें सीजीएसटी हो जाएगा और यूटीजीएसटी हो जाएगा आपका. सेंट्रल का और यूनियन टेरिटरी, है ना बेटे. गोवा जो है वो गोवा वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनियन टेरिटरी आपने पढ़ा है. हाँ, यानी लेवी फॉर यूटीजीएसटी. ऊपर ही पेज पे देखिए, ऊपर लिखा हुआ है बेटे लेजिस्लेशन गवर्निंग सीजीएस जीएसटी. 6 पॉइंट देखिए पेज नंबर 2.2, लिखा है ना, यूटीजीएसटी इन दोज यूनियन टेरिटरी विच डू नॉट हैव देयर स्टेट लेजिस्लेटिव और फॉर यूटी हैविंग ओन, मतलब उनका अपना ओन लेजिस्लेटिव होगा, दिल्ली का और पांडुचेरी का. तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटे
तो स्ट्रक्चर आई होप आल्सो क्लियर। सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया और यूनियन टेरिटरी टैक्स हो गया बेटे, यानी 4 टाइप ऑफ टैक्सेस इन जीएसटी। ओके, हेलो, तो स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था, जीएसटी काउंसिल। पहला टॉपिक था कंसेप्ट, दूसरा था स्ट्रक्चर, अब तीसरा है जीएसटी काउंसिल। You know, council such as is a joint forum of central or state to make recommendation to union and state relating to GST. And that means GST council is the apex constitutional body, that means authority, and to decide policy of GST. Okay. You don't know, बताइए, समझ में नहीं आया। मतलब जीएसटी काउंसिल इज अ ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंट्रल और स्टेट, और उसका पर्पस क्या होगा बेटे, यानी टू मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन इन स्टेट रिलेटिंग टू जीएसटी। जीएसटी काउंसिल इज सच एज एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अथॉरिटी इज टू डिसाइड पॉलिसी ऑफ द जीएसटी। ओके। अब मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल में बता रहे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे इसमें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होंगे इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फिनांस। तीसरा बता रहे हैं मेंबर कौन सा होगा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनांस या टैक्सेशन या एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज इलेक्टेड बाय जीएसटी काउंसिल। जो वाइस चेयरपर्सन होगा बेटे वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर है ना जो जीएसटी काउंसिल, इनके थ्रू। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ रहा है जो एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, जीएसटीएन। डिफाइन जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। अंडर सेक्शन 25 यानी कंपनी, यानी दैट इज नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, it has been formed with the sole purpose of providing the IT backbone to the government pertaining the goods and services tax law. यानी this word GSTN manage the entire IT system of the GST portal, है ना, which is mother database for everything GST. And this portal will be used by the government to track every financial transactions and will provide taxpayer with all services from registration to filling taxes and maintaining all tax detail. Okay, मतलब GSTN help India fulfill in its dream of paperless transactions where the compliance related to GST can be performed digital, है ना, digitally with maximum provision shared IT infrastructure between the central or state. Okay, and different type of features related to GSTN is the first ownership, second grant, third authorized capital, fourth management, fifth technology partner and trusted national information utility, government control and handleless complex transaction, and last sharing of expenses.
is a different point of related to feature of the GSTN. Grant such has been approved non-recurring grant, यानी रुपीज अमाउंट जो नहीं डिसाइड होती है थ्रू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट थ्रू एक तरीके से प्रमोशनल या कहना चाहिए डेवलपमेंट के पॉइंट, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को नहीं ग्रांट प्रोवाइड की जाती है, हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड की जाती है, जिन इन चीज़ों को गवर्नमेंट डेवलप करना चाह रही है, प्रमोट करना चाह रही है, इंडस्ट्रियल सिकनेस को रिमूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रांट प्रोवाइड की जाती है, बता सम ऑफ मनी to give the development purpose, and to provide the government. So GSTN has also been approved है ना for a non recurring grant of rupees बता रहे हैं 315 करोड़. हेलो, नहीं समझ में आया, क्या समझ गए बताओ? हाँ, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना. अभी नहीं, जैसे हम लोगों को गैस सिलेंडर में सब्सिडी प्रोवाइड की गई, फिर उसके बाद रिमूव कर दी गई, क्यों भाई? नहीं, वो लेने का कॉन्सेप्ट वो तो एक्चुअली वो सोर्स वाला है ना, रेवेन्यू सोर्स का कॉन्सेप्ट, लेकिन डेवलप करने के लिए किसी चीज को सरवाइव करने के लिए ग्रांट प्रोवाइड करती है ना वो, ह्यूमन वेलफेयर को ध्यान रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए. और जैसे आपका ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई है ना, और स्पोर्ट्स में हो गई, यानी हर एक में आती है ग्रांट सरवाइव कराने के लिए. वर्ल्ड बैंक अभी देखिए इसमें जो चल रहा है कोविड-19 वाला, इसमें प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, आप आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट टाइम पर आपको मटेरियल भेज देंगे, आगे का जो हम लोग को पढ़ना है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, इसका रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट. अभी शायद 2-3 चैप्टर थियोरेटिकली रहेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा. ओके, हैव अ नाइस डे. बबुआ बुलाओ, देखो पूछो रिकॉर्ड हो गया. फॉरवर्ड फ्यू ऑनलाइन शेड्यूल फॉर्मेट PDF. अब मेरा उसका 12 से 1 का टाइम हो गया, देखो क्या टाइम हो गया. 12:30. हाँ, उसका टाइम हो गया. और सो लो, और सुबह सो लो. लेकिन अब मैं थक गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ. पूजा करनी है. हाँ देखो रिकॉर्ड हो गई ना.